3 سال کے اندر عالمیت کو پورا کرنے کے لیے آج ہی ہمارے مدرسے کو جوائن کرے اور عالم اور عالمہ بنیے، وہ بھی 3 سال کے اندر اپنے واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے سے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم لوگوں نے کان اسم حاضر رجلی تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم لوگ اس سے آگے پڑھنے والے ہیں۔ اب تک کی جتنی بھی چیزیں آپ کو پڑھائی گئی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے، اور اسی لیے میں اور آگے آج پڑھا رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ابھی تک آپ نے نہیں سمجھا ہے تو کائنڈلی آپ پوچھ لیں، اس کو اسکپ کر کے آگے بڑھنے کی غلطی نہ کریں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، واو کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا، یہ واو میں معطوفہ ہوتا ہے، یعنی حرف عطف والا واو ہے، بس 2 جملے کے بیچ میں آتا ہے بتانے کے لیے، اور یہ ہوا اور یہ اور یہ اور یہ۔ کانا آزرو یبیع الاسنام، یہ 4 لفظ یہاں پر جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ کانا کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کانا افعال ناقصہ میں سے ہے۔ کانا کے علاوہ 13 اور ہیں، جیسے کانا، سارا، اصبح، امسا۔ تو یہ افعال کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بھی صیغے آتے ہیں، ماضی، مضارع، نفی، مثبت، معروف سب آتے ہیں، اسی لیے اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ فعل کی جمع افعال ہے، اس کو فعل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل ناقصہ یعنی آدھا فعل کیوں کہا جاتا ہے؟ ناقص مطلب ہوتا ہے ادھورا، تو آدھا فعل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس فعل کا فاعل اور مفعول نہیں ہوتا ہے، بلکہ کانا کا اسم اور خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کانا جب لگا ہوا ہے تو مجھے ڈھونڈنا ہوگا کانا کا اسم اور کانا کی خبر۔ آپ کو معلوم ہے کہ کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، کا مطلب اس کانا کے اسم پر ہمیشہ پیش ہوگا، اور کانا کی خبر پر ہمیشہ نصب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہے یہاں پہ کانا، تو کانا کا اب ہم کو اسم دیکھنا ہے اور فعل۔ تو کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، یعنی آذر پر پیش ہے، اسی لیے یہ مرفوع کانا کا اسم ہوگا۔ آذر پر تنوین کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی اسم یا تو تنوین ہوگا یا الف لام داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر الف لام اور تنوین نہیں آتی ہے تو 3 وجہ ہوں گی۔ پہلا، وہ جو اسم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا، تو مضاف پر الف لام اور تنوین داخل نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا ریزن کیا ہے تنوین نہ آنے کا؟ کہ وہ کیا ہو؟ غیر منصرف ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا وجہ کیا ہے؟ کہ اس پر الف لام داخل ہو۔ تو آذر پر الف لام داخل نہیں ہے، پھر بھی اس پر تنوین نہیں آیا۔ آذر مضاف بھی نہیں ہے، کیوں مضاف نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے آگے والا حرف جو ہے مضاف الیہ نہیں ہے، آگے والا جو اسم ہے وہ مضاف الیہ نہیں ہے، اس لیے کہ مضاف الیہ ہوتا تو کسرہ ہوتا، تو مضاف بھی نہیں ہے، تو بچا ایک کیا؟ غیر منصرف، تو آذر غیر منصرف ہے۔ تو اگر آذر غیر منصرف ہے تو اس کے اندر 2 سبب ہوں گے، یہ کل بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ آذر کے اندر کون کون سے 2 سبب ہیں؟ ایک ہے معرفہ، معرفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نام ہے، اور اس کا دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب ہے اجماع۔ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ عربی لفظ کے علاوہ کسی دوسرے زبان میں وہ نام کے لیے ایسا استعمال ہوتا ہو، تو آذر جو ہے وہ نام ہے، لیکن عرب میں استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کسی اور زبان کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ بات سمجھ میں آپ کو آ گئی۔ تو آذر پر اسی لیے تنوین نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب کانا کا جو اسم ہے وہ آذر ہے، اب مجھے ڈھونڈنا ہے کانا کی خبر۔
काना की ख़बर के बारे में आप जानते हैं कि काना की ख़बर हमेशा मंसूब होती है। तो उस सेंटेंस में मंसूब कौन है जिसके ऊपर नसब है? तो यहाँ देखिए अल असनाम पर नसब है, अलिफ लाम दाखिल है इसलिए इसके ऊपर तनवीन नहीं आया, असनाम पर नसब है। तो काना का इस्म क्या हो गया? आज़र, और काना की ख़बर हो गई असनाम। लेकिन बीच में छूट गया, क्या छूट गया? यबीउ छूट गया। अब मुझे यबीउ के बारे में मालूम ही नहीं कि यबीउ है क्या, इसलिए कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने सेगा याद तो किया नहीं है, तो मैं कैसे पहचानूंगा ये यबीउ? तो मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि ये यबीउ इस्म है या फ़ेल। तो हम देखेंगे अलामत, इसके ऊपर इस्म की अलामत है या फ़ेल की अलामत है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यबीउ पर इस्म की कोई अलामत मौजूद नहीं है, ना हर्फ जर दाखिल है, ना उस पर अलिफ लाम है, ना तनवीन है, ना मुज़ाफ़ है, ना उसके आखिर में गोल ता लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। वो तस्निया भी नहीं है, जमा भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये 100% फ़ेल होगा। अब फ़ेल है तब मुझे ढूंढना होगा कि फ़ेल है तो ये माज़ी का फ़ेल है या मुज़ारे का फ़ेल है। तो माज़ी का फ़ेल जो होता है उसके शुरू में कभी भी याद तो नहीं होता है। माज़ी के शुरू में क्या होता है? माज़ी का जो हर्फ असली होता है वो यहाँ पर शुरू में या लगा हुआ है। तो आपको मालूम है कि मुज़ारे का जो सेगा होता है उसके शुरू में अलिफ ता या नून में से कोई एक हर्फ लगता है। तो यहाँ पर या लगा हुआ है, ठीक है। बा इसका हर्फ असली है, या इसका बीच वाला हर्फ असली है, और लास्ट वाला आइन हर्फ असली है। लेकिन उसका शुरू में जो या लगा हुआ है वो मुज़ारे का या लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे देखना होगा, अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि ये मुज़ारे का फ़ेल है। लेकिन अब मुझे सेगा पता करना है कि भाई सेगा कौन सा है। तो आप देखिए कि वो से उसके यबीउ के आखिर में, यानी लाम कलीमा जो है यबीउ का आइन है, इसके आखिर में अलिफ भी नहीं लगा है, नून भी नहीं लगा है। इसका मतलब ये तस्निया का सेगा भी नहीं है। वाव नून नहीं लगा है, इसका मतलब ये जमा का भी सेगा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 100% वाहिद का सेगा है। अब मुझे देखना होगा कि भाई ये हाजिर का है कि गायब का। तो अगर हाजिर का सेगा होता तो या नहीं होता बल्कि ता होता। तो इसका मतलब ये हाजिर का सेगा है, नहीं है, गायब का सेगा है। अब ये देखना होगा कि मुझे वाहिद कि मुज़क्कर गायब के लिए है या मुअन्नस गायब के लिए। तो मुअन्नस गायब का जो सेगा होता है उसके शुरू में भी ता आता है। तो इसका मतलब ये क्या है? मुज़क्कर गायब का सेगा है। इतनी चीज़ें हमको ढूंढनी पड़ी सिर्फ़ किस वजह से? कि हमको फ़ेल याद नहीं है। तो इसीलिए मदरसों में फ़ेल याद करवाया जाता है। मुझे फ़ेल याद है, बा यबी फ़ेल है, ये ज़रब यज़रिबु बाब से, इसीलिए मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जान गया एक ही बार में देख के, करे ये तो फ़ेल है। लेकिन आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको इतनी चीज़ें तहकीक करनी होगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि 1 2 3 करके ही आप हर दिन फ़ेल को याद करिए। बा यबीउ का पूरा सेगा आपको याद नहीं भी रहेगा, पहला सिर्फ माजी का पहला, जैसे बा माजी है और मुज़ारे यबीउ है, इतना भी याद रहेगा। तो बाकी जितने सेगे वो तो मुज़ारे से ही बनते हैं ना। जैसे नसरा याद है आपको और यंसुरु याद है आपको। उसके बाद आपको कहे अम्र बनाओ तो आपको अम्र बनाने का कायदा मालूम है। आपको कहे नून सकीला वाला बनाओ तो आपको मालूम है आखिर में तस्दीद लगा देना है। आपको कहे खफीफ़ा वाला बनाओ तो आपको मालूम है आखिर में नून पर जज़म दे देना है। तो सारी चीज़ें मुज़ारे से बनती है। तो कम से कम माजी और मुज़ारे आप याद कर लीजिए, बाकी सारे सेगे आपको आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो यबीउ के बारे में हमने देख लिया कि ये फ़ेल है। अच्छा, अब अगर फ़ेल है तो मुझे अब फ़ेल का फ़ाइल भी ढूंढना होगा और मफ़ऊल भी ढूंढना होगा, यानी एक काम करने वाला भी हमको चाहिए और जिस पर काम हुआ है वो भी चाहिए। तो यबीउ के बाद असनाम है, असनाम पर नसब है। इसका मतलब क्या होगा? नसब किस वजह से आता है? हाँ, अब आपको अगर ये तो काना की खबर था तो हो ज़रूरी है, ये हो सकता है कि कोई इसम काना की खबर भी बन रही हो कान और किसी फ़ेल का नसब भी, उसमें क्या हर्ज है? दोनों बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तर्जमे में कोई फ़र्क नहीं आता है। फिर मैं बताता हूँ कि मिलाया कैसे जाएगा दोनों को। यबीउ फ़ेल है तो इसका एक फ़ाइल होगा, एक मफ़ूल होगा। तो भाई मफ़ूल तो नज़र आ रहा है हमको। क्यों मफ़ूल नज़र आ रहा है? इसलिए कि असनाम पर जो नसब है तो नसब हमेशा मफ़ूल होने की वजह से आता है। अभी आप काना को मिटा दीजिए, समझिए काना नहीं है, यबीउल असनाम है। तो यबीउ फ़ेल है और असनाम मफ़ूल है। अब मुझे फ़ाइल ढूंढना है। काना के फ़ाइल पर कौन सा इराब होता है?
मरफू होता है। तो इसके अंदर फ़ाइल नहीं है, फ़ाइल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यबीउ के अंदर जो हुआ ज़मीर है उसको फ़ाइल मान लेंगे। तो अब अगर हुआ ज़मीर को हम फ़ाइल मान रहे हैं तो ज़मीर तो किसी की तरफ लौटती है, तो ज़मीर से पहले क्या है, ज़मीर से पहले आज़र है, यबीउ से पहले क्या है, आज़र है, आज़र नाम है, तो ज़मीर क्या होगी, आज़र नाम की तरफ लौट जाएगी। तो आज़र को कहेंगे मरजा, और यबीउ के अंदर जो हुआ ज़मीर है वो ज़मीर, तो ज़मीर और मरजा ये आपको याद आ गया। हमने कहाँ पढ़ा था, इसमें गैर मुतमक्किन के बाब में अस्माए इशारा में पढ़ा था, यहाँ आपने देख लिया। तो यबीउ क्या हो गया, फ़ाइल हो गया, सॉरी फ़ेल हो गया। यबीउ के अंदर जो हुआ ज़मीर है वो फ़ाइल बन गई जो आज़र की तरफ लौट रही है। और अल असनाम क्या हो गया, ये अल असनाम मंसूब बन गया, मफूल बन गया यबीउ फ़ेल फ़ाइल का। तो अब हम इसको कैसे मिलाएंगे, यबीउ फ़ेल और फ़ाइल और मफ़ऊल तीनों मिल कर के क्या बन जाएगा, काना की ख़बर। कितना आसान था, काना का इस्म तक तो बात कंप्लीट था, काना की ख़बर में ये थोड़ा पेचीदा हो रहा था। तो हमने क्या किया, यबीउ और असनाम दोनों को मिला दिया और कह दिया कि भाई ये दोनों मिल के काना की ख़बर हो गए। तो आपको समझ में आ गया एराब। अब देखिए, काना मतलब था, आज़र नाम है, यबीउ मतलब बेचता है या बेचेगा, ठीक है। और अल असनाम तो आपको पता है सनम उनकी जमा असनाम यानी मूर्ति। तो काना आज़रु यबीउल असनाम, आज़र यबीउल माने बेचता था, क्या बेचता था, अल असनाम, यानी आज़र जो है वो मूर्ति बेचता था। अब मैं ये तर्जमा क्यों कर रहा हूँ, बेचता था, मुझे तो करना चाहिए बेचता है या बेचेगा, मैं था का तर्जमा क्यों किया। तो अब इसको आइए प्रैक्टिकल सेशन में अचीव करते हैं। ये है आपका प्रैक्टिकल, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप बहुत ध्यान से समझें। काना आज़रु यबीउ अल असनाम, नाम पर नसब, सॉरी, काना आज़रु यबीउल असनाम, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, काना आज़रु यबीउल असनाम, ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए, यही चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। इसका मैंने तर्जमा क्या किया है कि आज़र मूर्तियाँ बेचता था, जबकि यबीउ का तर्जमा आपको ये मालूम है कि बेचता है या बेचेगा, क्यों, मुज़ारे का तर्जमा तो यही होता है। तो अब कायदा आप याद रखेंगे, काना जब फ़ेले माजी पर दाखिल होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर नसरा, हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया है, ठीक है। अब सफ़तुल मसादिर से हम कोई और बाब लेंगे, कौन सा बाब लेंगे, दखला ज़रबा, तो हम लेते हैं दखला, नहीं ज़रबा लेते, ज़रबा तो नहीं, इसलिए कि नसरा से नहीं है अभी, ठीक है, नसरा ही ले लीजिए, इसलिए कि मेरे जहन में अभी फ़ौरन नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो वो मेरे तर्जमे के हिसाब से नहीं बैठेगा। तो मैं लेता हूँ काना नसरा, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं काना नसरा ज़ैदुन भी आप लिख सकते हैं, ठीक, काना नसरा ज़ैदुन, तो नसरा जो हो जाएगा वो फ़ेल बन जाएगा और ज़ैदुन उसका फ़ाइल बन जाएगा, और फ़ेल फ़ाइल मिलके काना की ख़बर। तो फिर काना का इस्म कहाँ है, काना के अंदर भी जो हुआ ज़मीर है वो काना की इस्म बन जाएगी। ये हो सकता है, लेकिन मुझे अभी वो नहीं समझाना है ज़मीर वगैरह, मुझे ये समझाना है काना ज़ैदुन नसरा मैं कर देता हूँ ताकि वो ज़्यादा आसान, इसलिए कि वहाँ पर भी ऐसे लिखा है काना आज़रु लिखा हुआ है, ठीक है, बीच में एक नाम है काना ज़ैदु, काना ज़ैदु नसरा। इसका जो तर्जमा होता है, काना जब भी फ़ेले माजी पर दाखिल होता है, यहाँ पर क्या है, नसरा फ़ेले माजी है,
काना जब भी फ़ेल माजी पर दाखिल होता है तो क्या होता है, उसका तर्जमा हम करते हैं किया करता था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है काना ज़ैदु नसरा, ज़ैदुन नाम है और नसरा मतलब मदद करना, तो इसका तर्जमा होगा, नसरा के माने तो होती है मदद किया माजी में, लेकिन जब काना लग गया तो काना का तर्जमा हो जाता है कि ज़ैद मदद किया करता था। तो ये सिर्फ नसरा था तो मतलब था मदद किया उस एक मर्द ने, ज़ैद ने मदद किया माजी में गुजरे हुए ज़माने में, लेकिन जैसे ही काना लगा तो तर्जमा हो गया ज़ैद मदद किया करता था। समझ में आ रहा है, क्यों, तो किया करता था ये किसकी वजह से बदल गया, तो ये बदल आया, तर्जमा आया काना की वजह से। ठीक है, तो ये काना ने क्या किया, काना जब फ़ेल माजी पर दाखिल होता है तो इसका मतलब होता है कि तर्जमा हम करते हैं ज़ैद ने मदद किया था। सॉरी, मैंने किया करता था बोला था, उससे नहीं। काना जब माजी पर दाखिल होगा तो तर्जमा हो जाएगा था, यानी ज़िंदगी में एक बार कभी किया था, ये तर्जमा होता है। जैसे काना ज़ैदुन नसरा, ज़ैद ने ज़िंदगी में एक बार कभी मदद किया था, यानी ज़ैद ने मदद किया था। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं ले आता हूँ दखला, तो काना ज़ैदुन दखला, ज़ैद कभी दाखिल, ज़ैद माजी में दाखिल हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से मैं ले आता हूँ अकला, ज़ैद खाया था। तो ठीक है, था का जो तर्जमा हो गया ये, तो काना ज़ैद, आपको माजी पर अगर काना दाखिल होता समझ में आ गया। यही अगर मुजारे पर काना दाखिल होता है तब तर्जमा होता है किया करता था। काना ज़ैदुन यंसुरु, ज़ैद मदद किया करता था। ठीक है, इसी तरीके से मैं ले आऊँ यदखुलु, तो होगा कि ज़ैद दाखिल हुआ करता था। तो समझ में आ रहा है, माजी पर दाखिल होगा तो किया था और मुजारे पर दाखिल होगा तो करता था। तो यहाँ जो काना है ये किस पर दाखिल है, ये काना दाखिल है मुजारे पर। तो तर्जमा क्या होगा, अगर काना नहीं होता तो होता बेचता है या बेचेगा, लेकिन यहाँ पर मुजारे पर दाखिल है काना तो तर्जमा होगा बेचा करता था। इसीलिए मैंने तर्जमा किया काना आज़रु यबी उल असनाम, आज़र मूर्ति बेचा करता था। समझ में आ गया, बहुत इजी था। और नेक्स्ट जो अब ये अगला जो जुमला है, ये जुमला मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए। क्या, काना के बाद जब फ़ी हर्फ जर हो तो जार मजरूर मुताल्लिक होकर किसी का इसम बनते हैं, लेकिन वो फिर एक बार और रिवाइज़ करेंगे हम ताकि और पुख्ता हो जाए। ये काना आपका फ़ेल नाकिस, फ़ेल नाकिस क्यों कहते हैं मालूम चल गया आपको। हमको पहले अब इसका इसम ढूंढना है और ख़बर ढूंढना है। आपको मालूम है काना का इसम कैसा होता है, मरफू होता है। तो बैतुन तो मरफू है, कबीरुन भी मरफू है। सेम वही चीज़, रजुलुन मशहूरुन, बैतुन मतलब घर, कबीरुन मतलब बड़ा, तो बड़ा घर मौसूफ सिफत होगा, इसीलिए दोनों का एराब सेम है। तो ये मौसूफ सिफत मिलकर के क्या बन जाएगा, काना का इस्म। अब मुझे ढूंढना है काना की खबर, ये जिद्दन हमेशा ऐसे ही लिखाता है। अब मुझे ढूंढना है काना की खबर, और ये हमारे पास बचा हुआ है। तो फ़ी हर्फ़े जर, हाजी ही मुज़ाफ़, अलक़रियती मुज़ाफ़ इलैह। हाजी ही मुज़ाफ़ क्यों, इसलिए कि अलक़रियती पर मजरूर जर क्यों है। ठीक है, हाजी ही पर जो है, हाजी ही ऐसे ही लिखा था, आप ये ना समझे कि हाजी ही पर कसरा है। क्यों, इसलिए कि हाजा हाजी ही वगैरह जो इसमें गैर मुतमक्किन है, ये मबनी है, इसका इराब नहीं बदलता है, हाजी ही लिखाता है ऐसे है। तो ये हाजी है। करियतिन पर कसरा क्यों है, अलकरियती पर कसरा क्यों आया, तो कसरा आने की दो ही वजह हो सकती है, या तो हरफ जर दाखिल हो या मुज़ाफ़ हो, मुज़ाफ़ इलैहि हो। करिया पर तो कोई हरफ दल दाखिल नहीं है, तो हाजा पर हरफ जर दाखिल है ना, तो करिया मुज़ाफ़ इलैहि है, इसलिए इस पर कसरा आया है। तो अगर ये मुज़ाफ़ इलैहि है तो 100% इससे पहले वाला हर्फ मुज़ाफ़ है, तो ये मुज़ाफ़ है, हाज़िही मुज़ाफ़। तो ये मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर क्या बन जाएगा, फ़ा हर्फ जर का मजरूर बन जाएगा, और जार मजरूर से मिलकर क्या हो जाएगा, मौजूदुन की, मौजूदुन से मुताल्लिक हो जाएगा। मौजूदिन में क्या क्या हो रहा है आपको मालूम है, जार मजरूर मिलकर किसी मौजूदुन फ़ेल का जो है, क्योंकि फ़ी हाज़िल करिया, वहाँ भी था फ़ी करियतिन, यहाँ भी है फ़ी हाज़िल करियती, वहाँ भी तर्जमा था गाँव में, यहाँ भी है तर्जमा गाँव में। तो गाँव में मौजूद ही होगा ना, या तो रह रहा है मौजूद है, तो यहाँ क्या करेंगे मौजूदुन। लेकिन काना की जो
काना की जो खबर होती है वो मंसूब होती है, तो मौजूदुन नहीं होगा, मौजूदुन होगा। इसको आप फिर समझ लीजिए। तो मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन आज फिर एक बार समझाऊंगा तो और ज़्यादा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये मैंने लिखा काना, कानफी हाजिहिल करियती, कानफी हाजिल करियती, इतना ही लिखना है। बाकी क्या है, बैतुन कबीरुन, तो बैतुन कबीरुन, ठीक है। दोनों पर मैं पेस्ट लगा देता हूँ ताकि आपको मालूम रहे। ये काना का इस्म हो चुका है। काना की ये इस्म कंप्लीट है, इसको मैं येलो कर देता हूँ क्योंकि काना का इस्म जो है कंप्लीट है। काना है, काना का इस्म हो गया। ये फ़ी करियतीन से पहले हम क्या करेंगे, मौजूदुन को यहाँ पर मान लेंगे। मुझे लिखना, आपको हर्फ लिखना नहीं है, मानना है बस। मैंने क्या किया, मौजूदुन मैंने लिखा, लेकिन काना का खबर जो होता है ये क्या बनेगा, काना की खबर बनेगा। क्यों, कल का आपको मैंने बताया था कि काना के बाद अगर जार मजरूर आता है तो वो क्या होता है, खबर, काना का इस्म बाद में आता है, काना की खबर पहले हो जाती है। तो ये मौजूदुन क्या बनेगा, काना की खबर बनेगा। तो इस पर क्या आएगा, अलिफ, और इस पर आएगा तनवीन। तो काना मौजूदन फ़ी हाजिल करियती बैतुन कबीरुन, ठीक है। ये असल में ऐसे भी हो सकता है, काना बैतुन कबीरुन मौजूदन फ़ी हाजिल करियती, था एक बहुत बड़ा घर मौजूद उस गांव में, ठीक है। लेकिन जब भी जार मजरूर होता है, ये कायदा है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि जब भी जार और मजरूर आ जाता है काना के बाद, तो काना का खबर पहले आ जाता है और काना का इस्म बाद में। तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ है। ये मैंने आपको कल यहाँ भी समझाया था, सॉरी यहाँ समझाया था, और यही चीज़ यहाँ भी रिपीट हो गई, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। काना फ़ी हाजिल करियती। अब तर्जमा देखिए, काना मतलब था, फ़ी हाजिल करियती उस गांव में, अल बैतुन कबीरुन बहुत बड़ा घर, यानी तो बहुत था गांव, इस गांव में बहुत बड़ा घर क्या मौजूद था। तो तर्जमा करिए, उस गांव में बहुत बड़ा घर मौजूद था, ठीक है। वकान फ़ी हाज़ल बैती, ये भी सेम ऊपर वाला है, वकान फ़ी हाज़ल बैती असनामुन, तो ये भी काना की इस्म बाद में आई, काना की खबर मौजूदुन होकर यहाँ। तो यहाँ भी तर्जमा क्या होगा, काना फ़ी हाज़ल बैती असनामुन, के उस गांव में उस गांव बैत मतलब घर, सॉरी, तो उस घर में मौजूद था, क्या मौजूद था, असनामुन कुछ मूर्तियाँ। और वो मूर्तियाँ कैसी थी, असनामुन कसीरतुन। अब देखिए, असनामुन क्या है, मौसूफ़ है, कसीरतुन सिफत है, लेकिन असनामुन जो है मुज़क्कर है और कसीरतुन सिफत है। तो आपको पहले बता दिया गया था कि गैर आकिल की जो जमा आती है, अगर वो मौसूफ़ है तो उसकी सिफत हमेशा वाहिद मुअन्नस होती है। तो सनम की जमा असनाम है और मूर्तियाँ जो है गैर आकिल है, जानदार नहीं है। तो सनम की जमा असनाम मौसूफ़ आई, तो इसकी सिफत क्या आई, वाहिद मुअन्नस, ठीक है। तो सन असनामुन कसीरतुन, तो उस घर में क्या था, बहुत सारी मूर्तियाँ मौजूद थी, ठीक। उसके बाद देखिए काना, ठीक है, इसका इस्म, तो काना का इस्म ये है अन्नास। अन्नास इस्म क्यों है, नास पर जो है पेश लगा हुआ है। आपको मालूम है काना का इस्म हमेशा मरफू होता है, तो नास जो है काना का इस्म। यसजुदूना, ठीक है। अब आपको देखना होगा ये फ़ेल है या फ़ाइल, क्या है, ये इस्म है कि नहीं। तो सिंपल है, मुझे मालूम है कि ये फ़ेल है, क्यों, इसलिए कि मैंने याद किया है, सजदा यसजुदू नसर यंसुरू बाब से, तो मुझे याद है। लेकिन आपको ढूंढने का वही तरीका है, आप बहुत सारा चीज़ देख करके ढूंढोगे। यसजुदूना ली हाज़िहिल असनाम, अभी ली को आप इग्नोर करिए, हाज़िहिल असनाम मा, अगर लाम नहीं होगा तो असना मा, ठीक है। मैं इस जुमले को यहाँ लिखता हूँ, कानन्नासु
यसजुदून ली हाज़िही ये ठीक है, बैतुल कबीर उनको हटा दिया जाए। कानन नासु यसजुदून ली हाज़िहिल असनाम, ठीक है। ला काना आपको मालूम है, अन्नास इस्म है, यसजुदूना फ़ेल है, लाम हरफे जर है, ठीक है, और असनाम पर जो है कसरा है। तो सबसे पहले असनाम देखिए, असनाम पर कसरा क्यों है? कसरा आने की दो वजह, हरफ जर या मुज़ाफ़ इलैहि। मुज़ाफ़ इलैहि हरफ जर हो नहीं सकता है, क्यों? इसलिए कि यहाँ पर कोई हरफ जर दाखिल है नहीं असनाम पर। हाज़िही पर तो हरफ जर लाम दाखिल है, लाम हरफ जर है, लेकिन असनाम पर नहीं है। तो असनाम मजरूर है, इसका मतलब ये 100% क्या होगा? मुज़ाफ़ इलैहि होगा। अगर ये मुज़ाफ़ है तो इससे पहले वाला मुज़ाफ़ इलैहि हो, मुज़ाफ़ हो। ये अगर अल असनाम मुज़ाफ़ इलैहि है तो इससे पहले वाला मुज़ाफ़ होगा। इसका मतलब हाज़िही जो है वो क्या है? हाज़िही मुज़ाफ़ है, ठीक। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर क्या बन जाएगा? मफ़ऊल बन जाएगा। मफ़ऊल क्यों बनेगा? अब यहाँ पर सवाल पैदा हो जाएगा कि मफ़ऊल क्यों बनेगा। तो मफ़ऊल इसलिए बनेगा कि सजदा यसजुदूना ये जमा का सेगा है, ठीक है, ये जमा का सेगा है। तो इसके अंदर हुम ज़मीर जो है वो फ़ाइल है, ठीक है, हुम ज़मीर फ़ाइल, और वो फ़ाइल ज़मीर है तो इसका मतलब उसका एक मर्जा होगा। तो अन्नास जो है वो मर्जा है। कैसे? यसजुदूना के अंदर जो है हुम ज़मीर फ़ाइल है। हुम ज़मीर जब फ़ाइल है तो उसका एक मर्जा होगा ज़मीर का, तो अन्नास जो है वो मर्जा है, ठीक है। अन्नास जो है वो काना का इसम है, वो ठीक है, बाद में समझेंगे। ये पहले ही यसजुदूना के अंदर जो हुम ज़मीर है उसका अन्नास जो है वो मर्जा है, ठीक है। तो फ़ेल और फ़ाइल आपको समझ में आ गया। तो ये मफ़ऊल है। ये लाम क्यों लगा? तो सजदा जो होता है, सजदा फ़ेल जो होता है हमेशा लाम के साथ इस्तेमाल होता है। सजदा मतलब होता है सजदा करना, ठीक है। तो जिसको हम सजदा करेंगे ना उसके ऊपर लाम दाखिल हो जाएगा। जैसे मुझे ये कहना हो कि ज़ैद सजदा करता है अल्लाह की, सजदा ज़ैदुन, ठीक है, अल्लाह की, तो अल्लाह पर क्या होगा? लाम दाखिल हो जाएगा। ओफो, ठीक है। तो अल्लाह पर जो है लाम दाखिल हो जाएगा तो अल्लाह के नीचे कसरा आ जाएगा, इसलिए कि लाम क्या है? हरफे जर है। तो अब आप ये कायदा भी हमेशा याद रखेंगे कि सजदा का सिला, सजदा को सिला कहते हैं, कि जिस सजदा, जब भी सजदा फ़ेल आएगा, सजदा यसजुदू, तो जिसको सजदा करेंगे यानी जो मफ़ऊल होगा उसके ऊपर लाम दाखिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वही हुआ है, मफ़ऊल जो था उसके ऊपर लाम दाखिल हो गया। यानी लोग सजदा करते हैं, किसकी सजदा करते हैं? मूर्ति की, तो मूर्ति पर क्या हो गया? लाम दाखिल हो गया। अगर ये हाज़िही नहीं होता मिसाल के तौर पे तो ये लाम जो है अल असनाम पर दाखिल हो जाता, ठीक है, अल असनाम पर जो है दाखिल हो जाता। तो ये लाम क्या करता? हरफ जर, तब भी मीम पर कसरा देता। तो अगर आप हाज़िही को मिटा दे कुछ देर के लिए समझने के लिए तो आप ऐसे समझिए कि यसजुदूना जो फ़ाइल बनता है उसके ऊपर हमेशा लाम आ जाता है। अब बिल्कुल समझ में आ गया। तो कानन नास, और काना जो है मुजारे पर दाखिल है तो इसका तर्जमा क्या होगा? करता था। सजदा मतलब सजदा करना, तो क्या होगा? सजदा किया करता था। तो कानन नासु, काना इस्म और फ़ाइल भी है, तो लोग सजदा किया करते थे उस मूर्तियों की, उस वो जो मूर्तियाँ थी लोग उसकी इबादत किया करते थे, उसको सजदा किया करते थे, ठीक। सेम वही सेगा यहाँ भी है, काना आज़रु यसजुदू लिहाज़िहिल असनाम, सेम है, बस वहाँ पर क्या हुआ?
यसजुदूना के बाद अन्नास जमा का था और ज़मीर यहाँ लौट रही थी नास की तरफ। यहाँ क्या होगा, यसजुदू वाहिद कसेगा, इसके अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल है जो अपने मर्जा यानी आज़र की तरफ लौट रही है। तो क्या इसका तर्जमा क्या हुआ, लोग उस मूर्तियों की सजदा किया करते थे। और यहाँ देखिए सजदा का सिला फिर लाम है, तो यहाँ पे भी लाम जो है दाखिल हो गया है हाज़ल असनाम पर। ठीक है, अगर सिर्फ असनाम होता तो लाम असनाम पर दाखिल होता, लेकिन जो है हाजी पर दाखिल हो गया। तो अब यहाँ पर एक सवाल होगा कि हाजी को छोड़ करके यानी हाजी ही लिखा होता, डायरेक्ट लाम दाखिल हो जाता तो नहीं। क्यों, इसीलिए कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि होता है तो मुज़ाफ़ के ऊपर ही दाखिल होता है। हाज़िहिल असनाम मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि है तो लाम मुज़ाफ़ पर दाखिल होगा, मुज़ाफ़ इलैहि पर दाखिल नहीं होगा। ठीक है, तो काना आज़रु यसजुदु लिहाज़िल असलाम, आज़र जो है वो भी मूर्तियों की इबादत, सब मूर्तियों को सजदा किया करता था। ठीक, उसके बाद आखिरी जो है वकाना आज़रु याबुदु हाज़िहिल असनाम, कि आज़र जो था आबदा याबुदु फेल है, आज़र जो था ये भी नसर यंसुरु बाब से है। तो काना आज़रु याबुदु हाज़िहिल असनाम, हाज़िही जो है ये मजरूर नहीं है, इसके ऊपर कसरा नहीं है, हाज़िही जो है वो लिखाता ही ऐसे है। ठीक है, हाज़िही मुज़ाफ़ है और अल असनाम मुज़ाफ़ इलैहि नहीं, सॉरी यहाँ पर जो है हाज़िही को जो है आप इसमें इशारा माने और अल असनाम को मुशारुन इलैहि। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो हाज़ा इसमें इशारा है, तो जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इलैहि किया जाता है। तो हाज़ा किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मूर्तियों की तरफ, इसलिए मूर्तियाँ मुशारुन इलैहि है। तो ये हाज़ा जो है तरकीब में क्या होगा, हाज़ा इसमें इशारा और अल असनाम मुशारुन इलैहि, तो इसमें इशारा मुशारुन इलैहि मिलकर क्या बनेगा, मफ़ूल बनेगा याबुदू का, और याबुदू का फ़ाइल क्या बनेगा, आज़र बनेगा। क्यों, इसलिए कि याबुदू के अंदर जो हुआ ज़मीर है वो आज़र की तरफ लौट रही है। तो काना आज़रु याबुदू हाज़िहिल असनाम, कि आज़र भी इबादत किया करता था इस मूर्ति की। तर्जमा बिल्कुल आसान था, देखिए किस तरीके से इन्होंने लिखा है, एक ही चीज़ को बार बार लिखा है ताकि बच्चे जो पढ़े तो उनको मश्क हो जाए, याद हो जाए। अब ये एक चैप्टर आपका कंप्लीट, तो एक बार इसका हम लोग अच्छे तरीके से तर्जमा कर लेते हैं बहुत अच्छे अंदाज में, बिना किसी नहवी मतलब तरकीब तहकीक वगैरह के अलावा। मन कसरल असनाम, मूर्तियाँ किसने तोड़ी, बाएउल असनाम, मूर्तियों का बेचने वाला, क़ब्ल अय्यामिन कसीरतिन जिद्दा, बहुत ज़माने पहले की बात है। कान फ़ी क़रयतिन रजुलुन मशहूरुन जिद्दा, एक गांव में एक बहुत मशहूर आदमी रहा करता था, मौजूद था। वकाना इस्मु हाज़र रजुली आज़र, और उस आदमी का नाम था आज़र। वकाना आज़रु यबीउल असनाम, और आज़र जो था वो मूर्तियाँ बेचा करता था। वकाना फ़ी हाज़िहिल क़रयति बैतुन कबीरुन जिद्दा, और उसी गांव में एक बहुत बड़ा घर मौजूद था। वकाना फ़ी हाज़ल बैति असनामुन कसीरतुन जिद्दा, और उस घर में जो था बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थीं, मूर्तियाँ मौजूद थीं। वकानन नासु यसजुदून लिहाज़िहिल असनाम, तो लोग उस मूर्तियों की इबादत किया करते थे, सजदा किया करते थे। वकाना आज़रु यसजुदु लिहाज़िहिल असनाम, और आज़र उन मूर्तियों को सजदा किया करता था। वकाना आज़रु याबुदु हाज़िहिल असनाम, और आज़र भी उन मूर्तियों को पूजा करता था, उसकी इबादत किया करता था। एक चैप्टर आपका कंप्लीट। इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें समझ में ना आई हो आप पूछ ले, ठीक है, वरना हम इंशाअल्लाह अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। वही सेम आपका वही काम है, 2 लाइन आप यहाँ से यहाँ तक तहकीक कर लीजिए। अब तो बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह आपके लिए तहकीक करना। ये 2 लाइन जो है आप तहकीक करके मुझे बताइए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।